Okay, so in last class we covered selection sort and little bit introduction of quick sort. So can anybody tell me how quick sort works? Anyone? It is even written on the screen already. कोई एक सबसे पहले नंबर चुन लेंगे सर, और उससे जो छोटा होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, और जो उससे बड़ा होगा उसको राइट हैंड साइड में करेंगे इनिशियली, और उसके बाद ये प्रोसेस फिर दोहराते जाएंगे। फिर कोई दो नंबर लेंगे, फिर उसमें जो छोटा होगा उसको पहले रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको बाद में रखेंगे। Okay, okay. So quick sort is a partition exchange method. See, written over there, partition exchange method. What it means to say that we will divide a particular given array into multiple subparts until unless we will not get sorted subarrays, right? Once we sorted all the subarrays, then we will combine back to those combine back those arrays, right? So it is based on divide and conquer method, right? We already discussed in the last class. It is divide and conquer method, and it works on partitioning method, right? Am I right, guys? This one we यस already सर। discussed, right? Okay. So first we need to choose a pivot element, right? We need to choose a pivot. Pivot means the the portion from where we will bifurcate our main array into two sub arrays, right? So for that we will choose a pivot, or sometimes we say it as address it as what key, right? So for example, if you are having this array, let's say you have chosen one as a pivot element, that means this pivot will divide it into two sub part, right? We are assuming that this pivot element is already in its sorted place, right? So pivot element will divide your array into two subparts, and after dividing these, after partitioning these arrays into two sub arrays, we will again recursively call partition method, and we will apply same logic on that particular partition. If it is partition 1, then we will divide partition 1 again. If it is partition 2, we will divide partition 2 again, right? So this that's all we already discussed in the introduction of quicksort. So now let us come to the example. I think we already discussed it in the last class. So for example, we taken the example of this array A, which has these nine elements, right? So for easiness, we use two pointers. One is lower bound and upper bound. Lower bound signifies the initial element, first element of the array, and upper bound will signify as last element of given array, right? And we will use to another pointer named as start and end. So in the left hand side, you can see the algorithm of partition, right? And if you are able to see in the right hand side, we are having original quick sort algorithm. Original quick sort algorithm. Are you able to see this in the right hand side? This one. यस This सर, is our विजिबल सर। okay. So you can also see that in the quick sort, what all the arguments we are passing? We are passing the array name, initial, lower bound, and upper bound, right? And on the basis of these or given argument, this algorithm works. Okay. So initially we have chosen a LOC variable for storing the location of, what do you think? What we are going to store in LOC? पाइवोट एलिमेंट सर। Pivot element, or not pivot element, we are going to store index of pivot element, I of pivot, final I of pivot means we this is a it's a type of, we are storing its index number, right? So we will do that until unless we are having lower bound less than upper bound. If
lower bound exceeds upper bound, it will not work, right? So first of all, we will check if lower bound is less than upper bound. Then what we have to do? First of all, we need to find the location of pivot element, correct location of pivot element, right? We already discussed it in the last class. Have you remember, guys? Yes, sir. So here we are storing the location of pivot element, or we can say sorted location of pivot element. And for that, I am using partition method. I'm using partition function here, right? You can see, right? Which takes input as array name, lower bound and upper bound. Okay. Once we got the correct location of pivot element or key element, then only we can apply pivot quick sort on that again, right? That's what we did. We selected the pivot element and sorted the array according to pivot element. And once we got the proper location of pivot element, which is this one, this 7 was our pivot element, and 5 was its index. So partition method will, what it will do? It will return, what it will return? Index of pivot element, and here index of pivot element is 5. So LOC will contain 5. Are you understanding, or I am moving very fast? Are you guys understanding, or I may slow down? स्लो डाउन सर एंड हिंदी भी सर हल्का. Okay, first I will complete in English first, right? So partition method will return index of pivot element, which will be stored in LOC, right? And using this pointer, this index, I can bifurcate this complete array into two part, right? Now for each part, I will apply again quick sort. I will apply again quick sort. See, now I am passing a lower bound and upper bound as a LOC minus 1. LOC was 5, then LOC minus 1 equals to 4. So 0 and 4. I am passing in this quick sort, right? Again, that means I am recursively calling quick sort again. Am I right? Sir. And in the next, after that, I will again call quick sort for this array, this sub array, second array. This was first array. This is second array. For first array, I am again calling quick sort method, and for second array, I am again calling quick sort. But in the second array, we will pass lower bound as LOC plus 1. LOC plus 1 will be 6, and upper bound will be 8. 6 to 8, because we know fifth element is already sorted. Am I right? Am I right, guys? Yes, sir. Yes. तो अभी अभी इसको हिंदी में बोल देते हैं. अभी हमने क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम देखो कितनी छोटी सी है, आपकी छोटी सी है ना, बट ये अपने आप में बहुत बड़ी एल्गोरिथम बन जाती है, क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल कर रही है अपने आप को. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फिर से क्विक सॉर्ट आपने कॉल किया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन फिर से यहाँ इसको कॉल करने वाला है, ये वाला फंक्शन भी इसको फिर से कॉल करने वाला है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बनाई, उसमें पास किया मैंने नेम ऑफ एरे, लोअर बाउंड विच विल बी 0, and upper bound will be 8, because we have total n item with n equals to 9. So upper bound will be 8. Okay, ये मैंने पास कर दिया. मैंने एक वेरिएबल लिया LOC फॉर स्टोरिंग द लोकेशन ऑफ करेक्ट लोकेशन ऑफ पाइवट एलिमेंट, सॉर्टेड लोकेशन ऑफ पाइवट एलिमेंट. उसके लिए मैंने एक LOC को डिफाइन कर दिया. उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की, इफ LB इज लेस देन UB, लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड. जब तक लोअर बाउंड और अपर बाउंड से छोटा है, तब तक मैं ये वाले काम करने वाला हूं. तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन के अंदर LOC में स्टोर कर रहा हूं. क्या मैंने LOC में स्टोर करने के लिए एक फंक्शन कॉल की, जिसका नाम मैंने दिया था पार्टीशन फंक्शन कॉल किया. उसमें भी मैंने एरे को डाला, एरे को आर्गुमेंट पास किया, और उसका लोअर बाउंड डाला और उसका अपर बाउंड डाला. तो अभी लोअर बाउंड क्या है, 0, और अपर बाउंड 8.
ये पास किया, उसके बाद जब मैंने पूरा ये काम कर लिया, पार्टीशन ने अपना पूरा काम किया इस पॉइंट पे, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे पार्टीशन वाले ने अपना पूरा काम कर लिया, राइट। पार्टीशन वाले ने अपना पूरा काम कर लिया। अब ये पार्टीशन क्या मुझे देने वाला है, ये मुझे पाइवोट की, पार्टीशन का काम इतना है केवल कि वो पाइवोट की करेक्ट लोकेशन पे जाएगा, उसको सही जगह पे पहुंचाएगा, उसके बाद उसका जो इंडेक्स है उसको रिटर्न करना है, उसका काम, इतना काम है पार्टीशन का, ठीक है। और वो मैंने स्टोर, वो इंडेक्स नंबर था 5, सी हमारा पाइवोट था 7, तो इंडेक्स नंबर 5 था, राइट, 5 फिफ्थ इंडेक्स पे था वो हमने एलओसी में स्टोर कर दिया, राइट। अब उस एलओसी के यूज करने के यूज यूज क्या है, उससे वो एक बाउंड्री दिखा रहा है मुझे, पार्टीशन 1 की एंड पार्टीशन 2 की, पार्टीशन 1 की एंड पार्टीशन 2 की, राइट। अब उसका यूज करके मैंने दो सब एरे बना दिए। अब दोनों जो जो मैंने सब एरे बनाए उनमें दोबारा से मैंने क्विक सॉर्ट अप्लाई कर देना है। अब क्विक सॉर्ट जब अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट जो सब एरे है वो 0 to 4 जाएगा, क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट तो अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, राइट। और सेकंड सब एरे 6 से 8 तक जाएगा। तो फर्स्ट सब एरे के लिए मैंने जो क्विक सॉर्ट यूज किया उसमें एरे का नाम पास किया, लोअर बाउंड जो 0 था वो पास किया, और एलओसी -1, एलओसी था 5, 5 - 1 4, तो A04 पास कर दिया मैंने। और फिर से इसमें क्विक सॉर्ट अप्लाई किया तो ऑब्वियसली बात है दोबारा से कॉल होगा, फिर से ऊपर से जाएगा, फिर से इसकी एक नई एलओसी क्रिएट होगी, फिर अगेन पार्टीशनिंग होगी, राइट। ऐसी सिमिलरली मैंने क्या किया, क्विक सॉर्ट को अप्लाई किया इस सेकंड वाले में अप्लाई किया, तो उसमें मैंने पास, उसमें भी मैंने वैसे ही पास किया, बट इसमें मेरे को बाउंड्री कंडीशन पता है, तो मैंने इनिशियल जो लोअर बाउंड दिया वो क्या दिया, LOC+1, LOC+1 ही तो है, ये 6 जो इसका लोअर बाउंड है वो LOC+1 तो है, 5+1, एंड अपर बाउंड जो हमारा 8 था एज इट इज वो दे दिया। तो ये भी आपको रिकर्सिवली कॉल करेगा, राइट। तो कुछ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो ट्री टाइप का बन जाएगा आपका। फर्स्ट क्विक सॉर्ट कॉल हुआ, उसके बाद पार्टीशन ने जो एलओसी दी उसके बेस पे दो एरे बन गई, उसके लिए फिर मैंने अगेन क्विक सॉर्ट अप्लाई किया, फिर ये अगेन इसको आगे बाइफरकेट करेगा, इनकी दो दो सब एरे बनेंगी, ऐसे ये को बाइफरकेट करेगा, सब एरे बनेंगी पाइवट एलिमेंट का यूज करके, राइट। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। तो यहां तक समझ में आ गया, क्विक सॉर्ट का बेसिक फंडा समझ में आ गया, हैव यू गॉट ऑल दिस? Yes. Yes, नाउ sir. कम टू द मेन पॉइंट, what we did in the last lecture, we understood in the last lecture, we moved our start pointer and end pointer, right, to find the proper location of our pivot element, right? Am I right, guys? Yes, sir. So how we did it? The same will be governed by this algorithm. See, you may check, this will work similar as we did in the example part. Okay, so partition method, this is the definition of partition method algorithm. I am passing name of the array A, which is our array, main array. After that, I am passing lower bound and upper bound, lower bound and upper bound, right? After that, I am choosing a pivot element. So what I passed it in this example, we have chosen first element as a pivot element. Remember, guys? Sir, remember. That's what we did here. वही हमने यहाँ पर किया है, हमने पाइवोट में सेव कर दिया A of LB. A of LB will be 7, right? Right, dear? Yes, sir. Yes, sir. 7 आपका कहाँ चला गया, पाइवोट में स्टोर हो गया, क्योंकि हमें कंपैरिजन के टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पाइवोट में से सेव कर लिया, राइट। अब मैंने एक अनदर वेरिएबल यूज किया स्टार्ट, और एक दूसरा वेरिएबल यूज किया एंड, क्योंकि मैं मूव करने वाला हूँ ना पॉइंटर्स को, तो मेरे को एक एडिशनल पॉइंटर्स चाहिए होंगे इंडेक्स नंबरिंग के लिए, राइट। तो मैंने स्टार्ट यूज किया, एंड यूज किया, और स्टार्ट में मैंने जस्ट पास कर दिया LB, यानी कि स्टार्ट भी यहाँ पर है, और एंड में पास कर दिया अपर बाउंड, राइट। ओके, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई कि हमारा इनिशियलाइजेशन हो चुका है इस पॉइंट इन टाइम तक। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे करना था कि जब भी आपका जो A ऑफ स्टार्ट है वो पाइवोट से लेस देन और इक्वल्स टू है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को प्लस प्लस करूंगा, राइट। यही था लॉजिक।
यस सर, आगे बढ़ जाएंगे। है ना। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप स्टार्ट को वहीं पे रहने देंगे। क्लियर। एंड सर और दूसरे वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एंड एंड को मूवमेंट के लिए मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ए ऑफ एंड, अगर ए ऑफ एंड इज ग्रेटर देन पाइवोट, अगर ए ऑफ लिमिट। एंड इज ग्रेटर देन पाइवोट, देन we will decrease it. That means start will move in this direction and end will move in this direction, and till the point जब तक आपका start लेस देन एंड है तब तक आप ये काम करते रहेंगे। राइट, यही था। यस सर। है ना। तो मैंने फिर, अगर ये दोनों में नहीं जाएगा तो इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, ये जब दोनों काम कर लेगा कंप्लीट, इनमें से कोई कहीं पे तो स्टॉप होंगे। जैसे हमारे केस में ये पहली बार कहाँ पे स्टॉप हुआ था, कहाँ पे स्टॉप हुआ था याद है? इसमें आप करके देखो जरा। आपने फर्स्ट वाइल लूप में क्या किया, ए ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट, ए ऑफ स्टार्ट कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू पाइवोट, पाइवोट भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। तो यानी कि हमें मूव करना है तो स्टार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर दोबारा लूप में वापस घूम के आया यहीं पे, फिर इसने दोबारा से ए ऑफ स्टार्ट को चेक किया, क्या 6 इज लेस देन 7, जो हमारा पाइवोट ओके। एलिमेंट है 7, तो मूव करेगा। राइट, तो ये मूव कर गया। अब नाउ फिर अगेन चेक, इफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू 7, नहीं इट्स नॉट, दैट रुकेगा मीन्स यहाँ। यहाँ पर आपका स्टार्ट रुक जाएगा, तो अब स्टार्ट यहाँ पर होगा, ऐसे ही कुछ था। यस यस सर। सर। ठीक है। अब जब ये रुक गया, इसका मतलब आप इस वाइल लूप से बाहर आ गए, इस वाइल लूप से बाहर आ गए, फर्स्ट वाइल लूप से आप बाहर आ गए। अब आप गए सेकंड वाइल लूप के अंदर, सेकंड वाइल लूप में आपने एंड को चेक करना है, क्या एंड, ए ऑफ एंड, ए ऑफ एंड इज ग्रेटर देन पाइवोट, क्या है, 7 इज ग्रेटर देन पाइवोट, नो सर। नहीं है। तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा एंड को यहीं पे। तो यानी कि हम सेकंड वाइल लूप से भी बाहर आ गए। राइट, इसे साथ साथ लिखते जाओ बच्चे, इस कोड को ना साथ साथ लिखते जाओ। तो यहां पर जब हम रुक गए, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम मुझे स्टार्ट, स्टार्ट यहां पर है, स्टार्ट आपका यहां पर है और एंड यहां पर है। तो ये दोनों वाइल लूप से जैसे ही आप बाहर आओगे, फिर आप एक इफ कंडीशन चेक करोगे, इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, यस स्टार्ट इज लेस देन एंड, 2 इज लेस देन एंड, लेस देन 8, राइट। तो यहां पर क्या करना है हमें, स्वैप स्टार्ट, ए ऑफ स्टार्ट एंड एंड, हमें जहां पर एंड और स्टार्ट है उसको स्वैप कर देना है। तो ये 10 चला जाएगा यहाँ पर और 7 चला जाएगा यहाँ पर। राइट, यही होगा। यस सर। राइट बच्चे, ठीक है। तो ये उसके बाद अपडेट होके आपकी जो टेबल बन गई वो ये बन गई, नीचे आ गई, है ना। तो ये अपडेटेड टेबल है। अब इसमें दोबारा से हम जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है। देखो फर्स्ट जो ये वाला वाइल लूप है, इस पॉइंट इन टाइम पे जो आपका येलो कलर में है, इस पॉइंट इन टाइम पे अभी भी आपका स्टार्ट एंड से छोटा है। स्टार्ट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, और एंड अभी यहाँ पर है। तो 2 इज लेस देन 8, ओके। तो जब आपका स्टार्ट एंड से जब तक छोटा है तब तक ये काम हमें रिपीट करना है। तो फिर ठीक है, फिर हम इसके अंदर जाएंगे, फर्स्ट लूप के अंदर जाएंगे और ये काम हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, तो आपका स्टार्ट मूव होके यहाँ तक आ जाएगा। राइट, हैव यू रिमेम्बर? जब आप दोबारा से इसके यस अंदर सर। जाओगे, तो ए ऑफ स्टार्ट क्या है, ए ऑफ स्टार्ट 7 इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट, यस है। तो यानी कि आप मूव कर गए यहाँ पर, फिर दोबारा आए, फिर ए ऑफ स्टार्ट देखा, 5 इज लेस देन 7, यस, फिर मूव कर गए, फिर यहाँ पर दोबारा देखा, 9 इज लेस देन नो, तब स्टॉप इक्वल्स करेंगे। टू पाइवोट, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी आपकी स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पर आ गया अब आपका। अब आप सेकंड लूप में गए, सेकंड वाइल लूप में, उसमें आपने क्या चेक किया, क्या ए ऑफ एंड इज ग्रेटर देन पाइवोट, तो देखो यस सर। बिल्कुल। यस सर। बड़ा है, तो यानी कि मूव होगा, ये चला जाएगा ओके एंड सर, यहाँ पर आ 15। जाएगा। ओके, फिर हाँ। इसको दोबारा चेक करो, क्या ये बड़ा है, हाँ है। तो अब आपका एंड फिर से दोबारा मूव हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा, राइट, एंड, ठीक। अब यहाँ पर देखो, फिर से जब वो चेक करेगा, ए ऑफ एंड इज ग्रेटर देन पाइवोट, नहीं, नहीं है। यानी कि आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, सेकंड वाइल लूप से बाहर आ जाओगे, राइट। तो अब यहाँ पर आपका
स्टार्ट यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है इन दोनों को, स्टार्ट और एंड को स्वैप करना पड़ेगा हमें। तो आपका 1 इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा। एम राइट? यस सर। साउथ पीपल, यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हमारा इस स्वैप हो गया, तो हमारा स्वैप होने के बाद आपकी रिजल्टेंट जो आई वो ये बन के आ गई, राइट। अभी भी आपका स्टार्ट एंड से छोटा है। जब आप यहां से बाहर आए तो आप वापस घूम के फिर से इस वाइल लूप में जाएंगे, क्योंकि अभी तक स्टार्ट एंड से छोटा है, स्टार्ट इज लेस देन एंड। फिर जब आप करोगे तो आपका ये स्टार्ट के लिए चेक करोगे, ए ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट अभी यहाँ पर है, तो ये ए ऑफ स्टार्ट यहाँ पर है अभी, और एंड यहाँ पर है, राइट। ये स्टार्ट है, ये एंड है, ओके। तो अब जब आप जाएंगे फर्स्ट वाइल लूप में, तो इसके अंदर क्या होगा, ए ऑफ स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू पाइवोट। yes, a of star 1 is less than equals to pivot. Yes, then we will move start here. Again we will check 2 is less than 7. Yes, again we will check 9 is less than equals to 9. No, that means start will stop here. At this time start and end are signifying at same place, right? And now come to after that we will come to our second while loop. A of end is greater than pivot. Yes, A of end is greater than pivot, right? 9 is greater than 7, right guys? Sir. So in that case our end will move here, here, right? Right? Now end is less than start. So in this case this while loop breaks, because you are checking the condition. In the initial while loop you are checking start until and unless you are getting start less than end, then only you have to work on this portion, on this portion, otherwise you have to move out. now आपका जो एंड है वो बाहर आ चुका है, दैट मीन्स एंड जो है आपका एक्सीड लेस देन हो चुका है स्टार्ट से, यानी कि स्टार्ट एक्सीड कर चुका है एंड से, तो ये हो गया फॉल्स। जैसे ये फॉल्स होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, लास्ट वाले लूप के बाहर जो आपका स्वैप लिखा हुआ है, राइट? राइट डियर? Yes, sir. ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी एंड कहां पर है हमारा, इस पॉइंट पे 2 पे है हमारा एंड, अपडेटेड एंड हमारा 2 पे है, जो अभी अपडेट हुआ था इस वाइल लूप में, रिमेंबर 2 पे है बच्चे। यहां से 9 से आके ये 2 पे आ गया था ना अपडेट होके, Yes, sir. Yes, sir. एंड हमारा 2 पर है, ठीक है। तो हम इस लूप से बाहर आ चुके हैं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, एंड आपका स्मॉल हो चुका है स्टार्ट से, तो ये लूप नहीं ये लूप काम नहीं करेगा, इसकी कोई भी स्टेटमेंट काम नहीं करने वाली। तो अब आप बाहर आ गए इससे, तो आपने क्या करना है, अब स्वैप ए ऑफ एल बी। ए ऑफ एल बी इज व्हाट, यहाँ पर ए ऑफ एल बी क्या है बच्चे, One, एल बी one, one, one. दिस वन, ए ऑफ एल बी इज दिस वन, एल बी स्टिल हियर ना, we Yes, haven't sir. moved Seven. haven't moved LB ना, No, sir. that's why we taken additional variables start and end, because we need uh, LB and UB at this time, right? So here at the last, what I am saying, I will swap this end with start of LB, A of LB and A of end we need to swap, this is the final swap, right? So that means this 7 comes to its proper location, right? You can check here. You can check here. 7 comes to its proper location. Pivot elements comes to its proper location. वो अपनी सही जगह पे आ चुका है। अब आप अगर ध्यान से देखें, और इसमें देखो लास्ट में क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, Ind को, sir. एंड, और एंड कहाँ पर है, 5 इंडेक्स पे,
इंडेक्स नंबर 5 पे हैंड, Yes, sir. और स्वैपिंग के बाद वहां पे एलिमेंट तो चेंज हो गया, इंडेक्स तो वही है, यानी कि एंड एंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंडेक्स 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही 5 तो हमने यहाँ पर अभी पास किया। तो जो हमारा पार्टीशन का जो रिजल्ट है वो 5 ही तो पास किया हमने, देखो वही तो पास हो रहा है, रिटर्न तो वही कर रहा है वो। क्विक सॉर्ट में देखो Yes, sir. यहाँ, है ना। तो आपकी जो पार्टीशन है वो उसका काम क्या है, उसका काम इतना है कि वो जो भी चूज किया है आपने पाइवोट एलिमेंट, उसको अपनी प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचाएगा, और बाद में पहुंचाने के बाद उसको उसका इंडेक्स इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा, ताकि आप उसमें दोबारा से रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को अप्लाई कर सके, राइट। वही तो कर रहे हो आप बच्चे। ये देखो क्विक सॉर्ट को आपने यहाँ पे दोबारा से अप्लाई किया ना, आपको एलओसी रिक्वायर्ड था, एलओसी आपको पार्टीशन ने लाके दे दिया, लोकेशन आपको पार्टीशन ने लाके दे दी, किसकी, पाइवोट की, जो आपने चूज किया था। तो उसकी पाइवोट की लोकेशन 5 है। तो अब आपने क्विक सॉर्ट अप्लाई किया, तो यानी कि इस पाइवोट अपनी जगह पे आ चुका है, ये पाइवोट अपनी जगह पे आ चुका है, और इसने आपकी एरे को दो सब एरे में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2। but before partitioning you need a index number na, that's why partition is returning index number of pivot element, राइट। पार्टीशन का काम केवल इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है, क्योंकि जो वैल्यू थी पाइवोट की वो तो उसकी प्रॉपर लोकेशन में जा चुकी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, if you observe, this 7 is placed at its proper location, this was our pivot element, and it is bifurcating your main array into two sub arrays, 1 2, right. But mathematically if you need to partition it, you need index numbering, that's why partition method is returning its index numbering, right. Now again you will call quick sort on this partition as well as on partition number 2, right। अभी समझ में आया पार्टीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टीशन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे। Yes, sir. क्योंकि क्योंकि डिवाइड करने के लिए दो गो सब एरे हाँ को में। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाइवोट एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच चुका है, तो आपके जो पहले वाले एरे हैं और बाद वाले एरे हैं वो सॉर्ट, उनको भी सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी तो आपने केवल एक एलिमेंट को सॉर्ट किया, उसके बाद आप फिर अगेन इस पे अप्लाई करेंगे क्विक सॉर्ट। तो जब आप क्विक सॉर्ट एक लेफ्ट वाले पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, एरे का नाम तो डालना है, लोअर बाउंड क्या है, फर्स्ट सब एरे का लोअर बाउंड 0, एंड एंड अपर बाउंड क्या है उसका, लोकेशन -1, 5 -1 4। तो 4 देखो, 4 यहाँ पर है, क्योंकि आपका जो बेसिक क्विक सॉर्ट है वो आपके आर्गुमेंट क्या क्या लेता है, लोअर बाउंड ले रहा है, अपर बाउंड ले रहा है, और एरे का नाम ले रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी वो वही चीजें आर्गुमेंट पास करोगे आप, सेम आर्गुमेंट पास करोगे। तो यहाँ पर अब आप एलबी तो अपनी जगह सही रहेगा, फर्स्ट क्विक सॉर्ट में लेफ्ट वाले के लिए वो तो लोअर बाउंड तो एलबी रहेगा, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, लोकेशन -1, यानी कि 4, 5 -1 4। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टीशन जो आपका है, अब सेकंड पार्टीशन, उसके लिए जब आप क्विक सॉर्ट अप्लाई करोगे तो उसमें आप एरे का नाम ए ही रखोगे, और एलओसी +1 से स्टार्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है और इस पॉइंट तक जाने वाला है, राइट। इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है और इस पॉइंट तक जाने वाला है। तो 6, तो 5 + 1 6 होता है, तो ऑब्वियसली बात है 6 पास किया आपने और 8 पास किया। अपर बाउंड तो वही रहेगा सेम सेकंड एरे के लिए, राइट डियर। ये क्लियर हो गया बच्चे, ये वाली दो स्टेटमेंट जो कर रहे हैं। यस सर, क्लियर। तो अगर ये क्लियर हो गया तो अब यहाँ पर होगा क्या, पहली बार क्विक सॉर्ट कॉल किया गया, उसमें आपने लोअर बाउंड अपर बाउंड डाल दिया, उसके हिसाब से पार्टीशनिंग का एक रिजल्ट आया 5, वो आपने एलओसी में डाल दिया। अब उसका यूज करके आप पार्टीशन 1 में क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये दोबारा से रिकॉल करेगा किसको, क्विक सॉर्ट को, बट लोअर बाउंड और अपर बाउंड थोड़ा में चेंज आएगा, उसके हिसाब से अब ये दोबारा से ये सारा प्रोसीजर कॉल होगा, पार्टीशन वाला प्रोसीजर कॉल होगा लेफ्ट के लिए भी, पार्टीशन वाला प्रोसीजर कॉल होगा राइट के लिए भी, राइट। तो ऐसे रिकर्सिवली करते करते आपका जो हमने लास्ट में दिखाया था, कल सॉल्व कर रहा था जब हमने क्लास में, यू में चेक कि हमारा बाद में क्विक सॉर्ट से आपकी ये एरे जो थी वो सॉर्ट हो चुकी थी, हैव यू रिमेम्बर। सर,
तो क्विक सॉर्ट का अगर आपको नोट डाउन करना है इस कोड को, तो कोड को नोट डाउन कर लीजिए, और पार्टीशन का करना है तो पार्टीशन का नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक एवरीवन गॉट दिस। इज दिस क्लियर टू यू, पार्टीशन एंड क्विक सॉर्ट? हेलो, Sir, everyone clear? Any doubt? No, sir. Okay, if it is clear, so that's all for today. Thanks.